وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے. عبید الرحمان سلیمانی ایبٹ سے بات کر رہا ہوں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے 3 شادیاں کی ہوئی ہوں اور اس کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد 10 ہو اور مکان ان کا ایک ہی ہو, اس کے 5 کمرے ہوں, تو اب اس کی تقسیم کس طرح کی جائے گی وراثت میں سے؟ جی کوئی صاحب. جی ریپیٹ. ایک بندے کی 3 شادی ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا اس کے 10 جو ہے نا وہ اولاد بچے ہیں. ایک مکان ہے, 5 کمرے ہیں, تقسیم کیسے ہوگی؟ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو بچوں کا شیئرز ہے وہ بیٹی کا جو ہے وہ بیٹی کے حساب سے ملے گا, جو بیٹے کا وہ بیٹے کے حساب سے ملے گا. تو چاہے ایک بیوی کے 2 بیٹے ہوں, ایک کے 5 ہوں, لیکن وہ ڈسیزڈ کے کیونکہ بیٹے ہیں تو ان کو شیئرز جو شرعی شیئرز ہے سب کا بنتا ہے وہی ملے گا. اس کی ڈویژن جو ہے کیونکہ ممکن نہیں ہے تو اس کا ایک مارکیٹ ویلیو لگوائی جائے گی, اور یا اس سے پہلے بھی انٹرنل جو ہے ایک آ جائے گا کہ اس کی پرائس مقرر کریں. تو اس میں جو ہے اگر ان کی انٹرنل آکشن نہیں ہوتی, ایکسٹرنل ہوتی ہے, تو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کا تخمینہ لگوایا جائے گا کہ اس کی کتنی ملبے کی کتنی قیمت ہے, پلاٹ کی کتنی قیمت ہے. تو ہر ایک اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ورثہ ہوں, کہ ایسے بھی تو مطلب لاہور میں ایسی کئی جگہ موجود ہیں, ایسے مکان ہیں جس کے مطلب جو آباء و اجداد سے چلتے آ رہے ہیں اور وارثین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر کوئی 100-150 وارثین تو سب میں تقسیم ہوگی, چاہے وہ 10 پیسہ بنتی ہو یا 20 پیسہ یا 20,000 یا 20,000, ہر ایک کو اس کا شیئر ملے گا. بالکل. اگر ڈویژن نہیں ہو سکتی تو پھر پیسے ملیں گے, اس کے اس کی قیمت لگائی جائے گی, مارکیٹ ویلیو ہوگی. obviously وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جہاں پہ رہ رہے ہیں, اس کی مارکیٹ ویلیو لگائے, انٹرنلی اس کو ٹیبل ٹاک کرے, آکشن کریں, ورنہ ایکسٹرنل پہ جائیں, پھر مارکیٹ ویلیو ہوگی. جتنے بھی بچے ہیں وہ سوال تو بعد میں بن جاتا ہے, آپ کی ڈویژن اس طرح ہی ہوگی جس طرح بیٹے بیٹیوں کی ہوتی ہے. لیکن اس کی وراثت کیسے چڑھے گی اتنے سارے لوگوں کے اوپر؟ وراثت وہ ہوتا ہے کہ ڈیکلریشن لینا پڑتا ہے ایسے کیس. تو ڈیکلریشن کے لیے وہ سارے وارثین کو پارٹی بنانا پڑے گا. جی ساروں کو پارٹی بنا, اور وہ سارے آئیں گے, ورنہ باقی سارے ایکس پارٹی ہو جائیں گے. نہ بھی آئیں گے ایکس پارٹی بھی ہو جائیں گے, تو ان کو ان کا شیئرز ملے, ان کو ان کی آٹومیٹکلی لگ جائے گی. ہمارے ایک جج صاحب تھے مولوی انوار الحق صاحب سیول کے, تو ایک بہن کو انہوں نے ڈپرائیو کر دیا, لیکن اپیلانٹ کورٹ میں آ گیا کہ یہ بھی ان کی بہن تھی. تو اس بیس پہ ایک وہ ہائی کورٹ میں آ گئے ریویژن میں, کیونکہ اپیلانٹ کورٹ نے اس کو اس کا شیئرز نکال دیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں نیچے پارٹی ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ بہن ہے, ایڈمیٹڈ ہے, بنتا ہے. بالکل شیئرز بنتا ہے نا, تو اس کو مینٹین رکھا تھا انہوں نے کہا جی بالکل اس کا شیئرز بنتا ہے, کوئی بات نہیں نیچے وہ اگر پارٹی نہیں بھی بنی تو ٹھیک. لیکن اس بات سے تو تمام پارٹیز ایگری ہیں کہ وہ بہن ہے ان کی, کیونکہ وہ تو آٹومیٹکلی آپ کا لگنا ہی لگنا ہے, جو جا کے ڈکلیریشن لے کے کرے وہ الگ بات ہے. جی. اب اگر ہم بات کریں قبضوں کی, تو قبضے پاکستان میں جیسے کہ ابھی آپ نے کالز پہ بھی دیکھا, اور قبضوں کے بہت سارے معاملات ہیں, چاہے وہ اربن ایریاز ہوں چاہے وہ رورل ایریاز ہوں, ہر جگہ پہ قبضوں کے معاملات, لٹیگیشن بھری پڑی ہیں, عدالتیں بھری پڑی ہیں کہ ان ایسی لٹیگیشن سے. تو قبضے کے معاملے میں یہ جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے, اس کی ایک سیکشن ہے, سیکشن 9 میرا خیال ہے غالباً, جو کہ پروٹیکٹ کرتا ہے کہ کسی کو بھی کہ اگر آپ کو کسی بھی شخص کو اس کے پوزیشن والی جگہ سے ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے, انلیس کہ اس کے پاس ٹائٹل ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کو فوری پوزیشن واپس دلوایا جائے گا. تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو قانون کی اس سے عملداری ہوگی کہ کسی کو یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کو انلیگل مینر سے یا طریقوں سے وہ اسے ڈسپوزیس کرے. سب سے پہلے اس میٹر کو ریزالو کیا جائے گا کہ اس کو ڈسپوزیس کیا گیا, ڈسپوزیس بعد میں ٹائٹل کا بعد میں جو ہے وہ جی جو صاحب انلیگلی ڈسپوزیس کیا گیا. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے نا اس کو اس لیے ریکمینڈ نہیں کیا جائے گا کہ انلیگل ڈسپوزیشن جو ہے وہ ہے ایکٹ جو ہے 2005 کا, وہ ہے سمری ٹرائل, جبکہ یہ فل فلیش ٹرائل ہے جس کے اندر آپ کو پراپر ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہوگا, دونوں طرف سے کراس ایگزامینیشن ہوگی. ہاں جی انٹائٹل, اس لیے سب سے پہلے اس میٹر کو ریزالو کیا جائے گا کہ آپ کو ڈسپوزیس. وہ جو آپ سیکشن 9 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک لینتھی پروسیس ہے. اگر آپ ناجائز قبضے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اسپیسیفکلی کیا ناجائز قبضہ, لیکن اگر ناجائز قبضہ ہے تو وائی ناٹ وی یوز انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو کہ سمری ٹرائل ہے. سہیل صاحب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے کسی کی کوئی جگہ ہے اور وہ اس نے پرچیز کی ہے, اکثر لوگ ہوتا ہے کسی کے نام پر پرچیز کر لیتے ہیں,
ऐसे भी लोग देखे हैं जो किसी के नाम पर परचेज कर लेते हैं, बयाना करवा देते हैं, तो फिर कहते हैं हम रजिस्ट्री बाद में अपने नाम पर करवा लेंगे, लेकिन वो रजिस्ट्री की बारी आने से पहले ही जिस शख्स के नाम पर बयाना कराया होता है वो उस जगह का कब्जा लेकर बैठ जाता है। तो अगर ऐसे में आप अपना कब्जा लेने वापस जाते हैं तो आपके ऊपर पर्चा हो जाता है। तो ऐसे पर्चे को, कब्जे का पर्चा खारिज कराने में कितना टाइम लगता है? कब्जे का पर्चा, पहली बात है कि कब्जे का जो पर्चा खारिज होना है ना, वो खारिज नहीं होगा, वो पूरा प्रॉपर ट्रायल चलेगा कोर्ट के अंदर। जब भी आप पर्चे की बात करते हैं ना तो उसका एक ट्रायल चलता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कॉलम नंबर 2 पे डाल देते हैं और ऐसा एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई ऐसा एविडेंस प्रोवाइड कर देते हैं जिससे ये पता चल जाए कि आप असल उसके मालिक हैं, तो उस सूरत में इन्वेस्टिगेशन में क्या जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज होता है वो मजिस्ट्रेट को ये नहीं कह सकता कि ये नहीं, वो होता ये है कि कॉलम नंबर 2 में डाला जाता है, 169 के तहत उसको उसमें से बरी किया जाता है। 173 का चालान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जमा कराया जाता है, और प्रोसिक्यूशन जो है ना जब वो रिप्रेजेंट करती है, अगर मजिस्ट्रेट उससे एग्री करेगा तो वो बंदा बरी है, और अगर डिसएग्री करेगा तो फिर प्रॉपर ट्रायल चलेगा। तो ये एक अपना पीपीसी सीआरपीसी के तहत एक प्रोसीजर है। यही से कॉलर ऐड करते हैं, आपको भी ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी फरमाइए। जी मैं इकबाल बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं एक फ्लैट में रहता हूँ जिसकी तकरीबन वैल्यू कोई है 35 से 40 लाख के करीब। तो मेरे साथ मेरी एरिया भी रहती है और 3 बच्चे भी रहते हैं, और उसमें से मेरा एक बड़ा बेटा जो है वो शादीशुदा और वो थोड़ा ऊंचा बोलिए, जरा ऊंचा बोलिए और क्लियर। मेरा नाम इकबाल है और मैं एक फ्लैट में रहता हूँ जिसकी तकरीबन वैल्यू है 35 से 40 लाख रुपए। तो मेरे साथ मेरी एलिया और 3 बच्चे रहते हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा जो मेरा है वो आउट ऑफ कंट्री रहता है अपनी वाइफ के साथ। तो मुझे ये बता दें कि अब इसमें किसका कितना हिस्सा होगा जायदाद में, सब में फिर कैसे डिवाइड किया जाएगा? जी जो साहब क्या कह रहे हैं? आपके फ्लैट, आप लाइन पे हैं इकबाल साहब? आपके फ्लैट का एरिया कितना है? फ्लैट में रहते हैं आप? जी जी फ्लैट में। एरिया कितना है आपका फ्लैट का? और किनके हिस्से की बात कर रहे हैं आप? 3 बच्चों की। मैम 3 बच्चे हैं, मैं मालियत की बात कर रहा हूँ 35 से 40 लाख रुपए तकरीबन। जी ठीक है। 3 बेटे हैं या बेटियां भी इनमें? लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन अंदाजन हम बता देते हैं 35 से 40 लाख की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने अपने 3 बच्चों में डिवाइड करनी है। एक बेटा तो कंफर्म्ड है जो बाहर रहता है, 2 में से अगर चले 3 बेटे तो वैसे कैसे होगी? 2 बेटियां या 1 बेटा है? एक्चुअली ये है कि अभी तो वो खुद जिंदा है। हाँ जी, अभी तो खुद हयात है, अभी तो हयात है, तो डिवाइड वो अपनी मर्जी से जिसको जितना चाहे दे दे, हिबा कर सकते हैं, हिबा कर सकते हैं, वैसे रजिस्टर्ड सेल डीड भी करवा सकते हैं, जो भी है। खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाए तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि एक बार सेटल है या एक जो बेटा है वो कोई काम नहीं करता, फिर उनको शरी हिस्सा जो बनेगा वही मिलेगा, इक्वली जो बनता है, जो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 3 है तो अगर एक ही बेटा है और 2 बेटियां हैं तो 50% बेटे को चला जाएगा, बाकी 25% बेटियों को चला जाएगा। और अगर अकलौती बहन है तब भी इससे से 2 बेटों को चला जाएगा। जी और 25 वो जो है 25 नहीं, वो ज्यादा बनेगा, कुछ ज्यादा बनेगा बहन का। 35 टोटल 5 हिस्से बनेंगे तो 5वां हिस्सा जो है वो बेटी को चला जाएगा, 4 हिस्से 2 बेटों को चले जाएंगे। वैसे जो सब अमूमी तौर पे जो विरासत के ट्रायल्स होते हैं ये कितनी देर में कंक्लूड हो जाते हैं? सर अनलकीली यहाँ ख़वातीन बूढ़ी हो जाती हैं हिस्सा लेते लेते, उनके बच्चे जवान हो जाते हैं और हमारे ट्रायल ख़त्म नहीं होते। कोई ऐसा कोई इक़दामात हो रहे हैं ऐसे, या कोई ऐसी एक्शंस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रही है कि इन ट्रायल्स को जल्दी किया जाए? नहीं, अमेंडमेंट लॉ में तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब पार्टीशन एक्ट के तहत जो है वो 6 मंथ में डिसाइड होना है, लेकिन वो सालों चलता है। लेकिन अगर देखें बेटी का हिस्सा है, अगर विरासत की बात हो रही है तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, ओबर्सपर्सन ऑफिस काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, महीनों के अंदर जैसे बेटियों को हिस्सा मिल रहा है। बात सिर्फ वही है कि अवेयरनेस नहीं है, बहुत से लोगों को ओबर्सपर्सन ऑफिस का पता नहीं है, एप्लीकेशन जाके वहाँ आपने देनी है उसका पता नहीं है, अब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनके फोकल पर्सनस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं, गवर्नमेंट के इक़दामात बेहतर आ तो रहे हैं, अवेयरनेस रेजिंग पे आप थोड़ा फोकस करने की। जब देहाती इलाकों की हम बात करते हैं तो मुझे ये बताया, अगर देहात में ऐसे कोई मामला चल रहे हैं खवातीन के साथ तो वो किस तरह से
अप्लाई कर सकती हैं अपनी जायदाद के लिए और किस तरह से स्टेप फॉरवर्ड हो सकती है, ज़रा ये बताएं। जी, अब जैसे अगर मैं बात करूं गुजरांवाला के देहाती इलाकों की, तो डीसी ऑफिस में जैसे उनका फोकल पर्सन बैठते हैं, उनको वहां जाना पड़ेगा, इतना उनको करना पड़ेगा। अब हम जो है हम कोशिश ये करते हैं कि हमने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में कुछ ग्रुप बना दिए हुए हैं जिसमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं। अगर खातून या बेटी किसी वजह से वो नहीं जा पा रही, उसको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो हम कोशिश करते हैं सपोर्ट दें। वहाँ पे जाकर उसको एप्लीकेशन साइन करके और अपने ना बार बार आने की रीज़न भी बतानी पड़ती है कि मैं वायलेंस का शिकार हूँ या मुझे निकलने की इजाज़त नहीं है। तो उसके बाद उसको काफ़ी सपोर्ट मिल रही होती है और केसेस रिजॉल्व हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर आप बताइएगा कि ओम्बड्समैन की बार बार वफाकी सतह पे हो चाहे वो सूबाई सतह पर हो, वो बहुत काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये बताइएगा कि रोशनी डालिएगा कि इसकी लीगल कितनी वैल्यू, कितनी अहमियत रखता है और ये कितने मतलब ये, क्योंकि हमने सुना है कि डायरेक्शन दे सकता है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकता, तो ये भी आप इसकी लीगल वैल्यू सवाल है। और इसके ऊपर एक कराची की फुल बेंच की जजमेंट भी है। कोर्ट का या जज का जो सबसे पावरफुल टूल होता है ना, वो होता है कंटेम्प्ट। जब आप किसी भी एडजुडिकेटिंग बॉडी के साथ कंटेम्प्ट की पावर जोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद फिर उसकी जो पावर है ना, वो मतलब के बढ़ जाती है। ओम्बड्सपर्सन के पास किसी जमाने में ये पावर एग्जिस्ट करती थी, बट कराची के फुल बेंच ने कंटेम्प्ट की पावर जो है ना वो उससे छीन ली। जी ठीक है। अगर लेट सपोज ओम्बड्सपर्सन की डायरेक्शन हो गई है, अब क्योंकि ओम्बड्सपर्सन इन इटसेल्फ जो है वो एडजुडिकेटिंग बॉडी है, जब वो फैसला आ चुका है फिर उस फैसले को कहीं पे चैलेंज भी नहीं किया गया, इट हैज अटेन्ड फाइनलिटी। जी, तो फिर मेरा ख्याल है इसके बावजूद भी अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो फिर the most powerful tool would be to file a writ petition before High Court. Good. यहाँ हम एक कॉल ले लेते हैं। कॉलर भी ऐड करते हैं। इसके साथ साथ मेरा एक और भी क्वेश्चन होगा जो मैं चाहूँगी कि सर आप दीजिएगा, बीइंग अ सीनियर लॉयर, कि क्या ट्रांसजेंडर्स, जिन पेरेंट्स के बच्चों में कोई ट्रांसजेंडर या कोई इस तरह का इशू हो, तो उसकी कोई जायदाद में हिस्सा बनता है या नहीं? इसके साथ साथ हमें कॉलर भी ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए। मेरी 2 शादियां हुई हैं और मेरी दोनों बीवियां आपस में लड़ के मुझसे लड़ के कहती हैं कि तुम जिससे ज्यादा प्यार करते हो उसके वसीयत लिख दो, ज्यादा प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसके नाम करूं। आपके बच्चे हैं दोनों बीवियों से? नहीं। वैसे ये तो आपको शादी से पहले सोचना चाहिए था लेकिन प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। ये बीवियों में औलाद नहीं है उनकी दोनों बीवियों से, लेकिन दोनों बीवियां कहती हैं कि ज्यादा प्रॉपर्टी, एक कहती है मुझे ज्यादा लिख दे, एक कहती है कानूनी शरीयत का क्वेश्चन है, एलिमेंट है उसमें जो है वो उसकी डेथ के बाद तो 1/4 उन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर वो किसी को एक प्रॉपर्टी ज्यादा गिफ्ट कर देता है तो उसमें क्या अपनी जिंदगी में अगर तो इंटेंशन है टू डिप्राइव द लीगल शेयर ऑफ द अदर, फिर तो इट्स चैलेंजेबल। कि अगर आपकी इंटेंशन ही ये है कि मैंने इसको डिप्राइव करना है, तो फिर तो यस दैट कैन बी चैलेंज। इसके ऊपर एक हदीस भी मुझ, क्योंकि मुफ्ती साहब नहीं यहाँ पे हैं, लेकिन ये हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जिसने कहा जी कि मैं अपने एक बेटे को या एक औलाद को जो है ना देना चाहता हूँ अपनी सारी प्रॉपर्टी। जी, तो उसके ऊपर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी बाकी औलाद है? तो फिर उसके ऊपर उन्होंने फरमाया, जब कहा कि जी बिल्कुल है, तो उस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई सब में जो है ना वो इंसाफ करो, तकसीम करो। तो ऑन दिस ग्राउंड दैट कैन बी चैलेंज्ड। अगर आप डिप्राइव करना चाह रहे हैं दूसरी बीवी को, तो वैसे भी कुरान का हुक्म है, सूरह निसा की आयत नंबर 3 और 4 है कि आपने इंसाफ करना है, तो फिर ही एक से ज्यादा शादियां करनी, वरना नहीं करनी।